Today I am going to solve some important questions related to probability because I have taught you about some basic facts and important formulae related to probability. So today I am going to discuss how to solve word problem question related to coin and some other types of questions. Okay, so firstly I take a question number 1. The percentage marks obtained by a student in 6 unit test are given below are given below. So this is the information unit test, and here is the percent of marks obtained. Okay, first, second, third, fourth, fifth, and the sixth. Okay, so this is 53%, 72%, 28, 46, 67, 59. Next, a unit test is selected at random at random, then what is the probability? What is the probability that the student get more than 60% marks in the test? Okay, so students, first of all you read the questions and try to understand the meaning, what information is given here and what we need to find in these questions. Okay, to the percentage mass obtained by a student in 6 unit test are given below. किसी एक छात्र के द्वारा 6 यूनिट टेस्ट में कितना परसेंट मार्क्स प्राप्त किया गया है वो ऑलरेडी यहाँ पे दिया है. तो हियर इज द यूनिट टेस्ट फर्स्ट, यूनिट टेस्ट सेकंड, यूनिट टेस्ट थर्ड, यूनिट टेस्ट फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, and these are the percentage of marks obtained by the student such as 53%, 72% in the second unit test, 28% in the third unit test, 46% in the fourth unit test, 67% in the fifth, and 59% in the sixth unit test. So these are the percentage marks obtained by the student in different 6 unit tests. So if a unit test is selected at random, so what is the probability that the student get more than 60% marks in the test? Okay, so now look at the solution. The total possible outcomes is equal to
तो स्टूडेंट्स, look here in this question we need to find what the probability that the student get more than 60% mark in the test. So total possible outcome is equal to 6 because there are only 6 unit tests. Okay, और इन सभी 6 unit test में उस छात्र के द्वारा 60% से ज्यादा मार्क्स कितने यूनिट टेस्ट में प्राप्त किए गए हैं? तो 60% से ज्यादा यूनिट नंबर 5 में और यूनिट नंबर 2 इन दो यूनिट में 60% से एबव मार्क्स ऑब्टेन किया गया है। तो द नंबर ऑफ टेस्ट in which the student get more than 60% mark, more than 60% marks, so is equal to 2 because they have got more than 60% marks in 2 unit tests, यूनिट नंबर 2 एंड यूनिट नंबर 5। तो उस बच्चे के द्वारा केवल 2 ही यूनिट टेस्ट में 60% से ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन किया गया है। एक तो आप देख सकते हैं यूनिट नंबर 5 में जिसमें 67% आया, यूनिट नंबर 2 जिसमें 72% आया। इसके अलावा और कहीं पे किसी यूनिट टेस्ट में इसका नंबर 60% से ज्यादा नहीं गया। तो इसका मतलब 2 यूनिट टेस्ट में इसका जो है नंबर 60% से ज्यादा है। तो यहाँ पे 60% से ज्यादा नंबर लाने वाले यूनिट टेस्ट की संख्या कितनी है? सिर्फ 2। ओके, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 60% मार्क्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ टेस्ट इन विच he get more than 60% mark, that is 2, and the total unit test is 6, so it is equal to 2 upon 6 and 2 and the 2 and 2 3 is 6, so it is equal to 1 upon 3, or it is also defined as 0.3333, that is small. Okay, so this is the final answer. Okay students, तो उस स्टूडेंट के द्वारा प्रति केवल जो है 2 यूनिट टेस्ट में 60% से ज्यादा मार्क्स प्राप्त किया गया है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 2 upon 6 मींस 1 upon 3 के बराबर होगी। ओके, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, तो स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट द सेकंड एग्जांपल। In this example, following are the ages of 360 patients getting medical treatment in a hospital is recorded as. तो age in years is equal to 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 and 60 to 70. These are the age group. And here is the next row, there is a number of patients. So between age 10 to 20 there are 90 patients who getting medical treatment in a hospital, and from 20 to 30 ages 50 patients getting medical treatment, 30 to 40 60 patients, and between 40 to 50 years there are 80 patients, and 50 to 60 years are 50 patients, and similarly 60 to 70 years are 30 patients. तो if one of the patient is selected at random, यदि इनमें से कोई एक पेशेंट को अनियंत्रित या बिना देखे यहाँ पे चूज किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हिज एज इज 30 इयर्स और मोर बट लेस देन 14 इयर्स। तो यदि इन पेशेंट्स में से एक पेशेंट को चुना जाता है तो उस पेशेंट की उम्र 30 साल या 30 साल से ज्यादा परंतु 40 साल से कम होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम ये फाइंड करेंगे कि 30 साल और 30 साल से
से ज्यादा, 30 इयर्स और 30 इयर्स से ज्यादा परंतु 40 साल से कम के बीच में कितने पेशेंट यहाँ पे हेल्थ है, तो उनकी संख्या हम फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि 20 to 30, तो जैसा कि आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा है कि ये क्लास इंटरवल जो यहाँ पे लिखा होता है इसमें एक लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट होती है। तो लोअर लिमिट के बराबर तो डेटा इंक्लूड किया जाता है बट अपर लिमिट के बराबर डेटा यहाँ पे शामिल नहीं किया जाता है। ओके, तो इसका मतलब अगर 30 इयर्स की बात करें तो 20 to 30 इस एज ग्रुप में 30 साल का कोई भी पेशेंट यहाँ पे नहीं है क्योंकि ये 30 अपर लिमिट है। तो 30 यहाँ पे बेसिक यहाँ पे लिखा हुआ बट इसमें कोई पेशेंट 30 इयर्स का नहीं है। तो 30 ईयर के पेशेंट हमें किस क्लास में मिलते हैं, तो यहाँ 30 और मोर 30 बट लेस देन 40। तो ये जो एज ग्रुप है 30 to 40, यहाँ पे हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर मिलता है कि 30 इयर्स और मोर बट लेस देन 40 इयर्स, यानी 30 साल के हो या 30 साल से ज्यादा हो परंतु 40 साल से कम होना चाहिए। तो इसमें इस एज ग्रुप में 40 इयर्स अपर लिमिट है, इसका मतलब 40 इयर्स से कम उम्र के पेशेंट तो इसमें शामिल है बट 30 साल से कम के पेशेंट इसमें शामिल नहीं है। तो इसका मतलब यही हमारा वो क्लास इंटरवल या एज ग्रुप है जिसमें हमें इस पहले क्वेश्चन के पेशेंट की संख्या फाइंड करनी है। तो यहाँ पे राइट करेंगे नंबर ऑफ पेशेंट having 30 years or more but less than 40 years is equal to 60। ओके, तो 30 साल या 30 साल से अधिक परंतु 40 साल से कम उम्र के पेशेंट की संख्या कितनी है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 60 पेशेंट ऐसे हैं जो 30 to 40 इयर्स के बीच में आते हैं। तो इन 60 मरीजों का हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो एंड टोटल पॉसिबल आउटकम, व्हाट इज द टोटल पॉसिबल आउटकम, तो टोटल नंबर ऑफ पेशेंट इज द टोटल पॉसिबल आउटकम। स्टूडेंट्स यहाँ पे 360 लोगों का मेडिकल ट्रीटमेंट किया गया है, तो ये टोटल नंबर ऑफ पेशेंट यहाँ पे टोटल पॉसिबल आउटकम कहलाता है। ओके, सो वी फाइंड आउट the probability of getting the patient having age between 30 years to 40 years is equal to 60 upon 360. So 1 0 cancel with 1 0, 6 on the 6 and 6 is 36. So it is equal to 1 upon 6. This is the answer. Okay. तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर 1/6 है क्योंकि हमसे ये पूछा गया है कि कितने पेशेंट्स ऐसे हैं जिनकी एज 30 साल के बराबर हो या 30 साल से ज्यादा परंतु 40 से कम होने की प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो 40 से कम और 30 या 30 से ज्यादा उम्र के पेशेंट की संख्या 60 है। तो 60 आउट ऑफ टोटल 360 इट इज इक्वल टू 1/6। ओके, नाउ लुक एट द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। Second, 50 years or more but less than 70। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड में उन पेशेंट्स की संख्या जो 50 साल के हो या 50 साल से ज्यादा हो परंतु 70 साल से कम हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 50 to 60 एज ग्रुप दिया है और 60 to 70। तो 50 इयर्स के बराबर तो इसमें पेशेंट्स रखे जाएंगे क्योंकि 50 यहाँ पे लोअर लिमिट है बट यहाँ पे 50 आया हुआ है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि यहाँ पे 50 उम्र के कुछ पेशेंट यहाँ पे क्या शामिल है, तो बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो क्लास इंटरवल है 40 to 50 है। तो आप जानते हैं स्टैटिक में आपने पढ़ा भी
ज्यादा के भी होंगे बट 50 के बराबर नहीं होंगे। 50 के बराबर वाले पेशेंट इस एज ग्रुप में आ जाएंगे। तो हम अगर 50 इयर्स और उनसे ज्यादा साल के इस पेशेंट की बात करते हैं तो वो हमें यहाँ भी मिलेंगे 50 to 60 वाले कैटेगरी में, और उसके बाद लेस देन यहाँ पे 70 ईयर तो लेस देन 70 का कॉलम यहाँ पे है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पेशेंट इस एज ग्रुप के जो मिलते हैं वो 50 प्लस 30 के बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है कि द नंबर ऑफ पेशेंट्स whose age is between 50 years or more than 50 but less than 70, 50 साल के या 50 साल से ज्यादा परंतु 70 साल से कम होना चाहिए। तो ये एज ग्रुप हमें यहाँ मिलेगा 50 to 70। तो यहाँ पे हम दोनों को ऐड करेंगे 50 plus 30 is equal to 80। So the number of patients having 50 years or more than 50 but less than 70 is equal to 50 plus 30 is equal to 80, and the total number of patients is equal to 360. So the probability of patients between the ages 50 years to 70 years is equal to 80 upon 360. 1 0 cancel with 1 0, and this is divided by 4, 4 9 is 36 and 4 2 is 8, so it is equal to 2 upon 9. This is the answer. Okay, 2 upon 9. Next, question number 3. The probability of getting the patient having age less than 10 years. तो 10 साल से कम उम्र के पेशेंट की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 10 ईयर से कम। तो 10 ईयर से कम कि यहाँ पे कोई पेशेंट्स नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे 10 to 20 का एज ग्रुप है, तो 10 to 20 में 10 साल के और 10 साल से ज्यादा साल के जो पेशेंट है वो इस कैटेगरी में शामिल है, परंतु 10 साल से कम का कोई पेशेंट का यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं है। इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0। ओके, तो आंसर नंबर 3 क्या होगा आपका, 0 upon 360 is 0। ओके स्टूडेंट्स, एंड नंबर 4, 10 years or more, तो 10 साल या उससे ज्यादा। तो 10 years के एज ग्रुप के पेशेंट तो यहाँ पे हैं, और इससे ज्यादा एज की बात होगी तो 10 या 10 से बड़े, तो हम सारे यहाँ पे एज ग्रुप के पेशेंट को जोड़ लेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे। तो 90 plus 50 plus 60 plus 80 plus 50 plus 30 is equal to 360. Okay, so the answer of question number 4 is only 1, because the number of patients whose age group is between 10 to 70 is equal to 90 plus 50 plus 60 plus 80 plus 50 plus 30 is equal to 360. So 360 out of 360 means 1. So the answer of question number 4 is 1. Okay, I hope you will understand from these examples. So students, you try to solve some more important question related to probability in different books. If you have many books, then you try to solve this type of question every day. Okay, and one thing you remember that after completion your chapter you must be check your copy within the school in school time. Okay, thank you, have a nice day.